Hello everyone and welcome back to Wings Ekudan. I hope your preparation is going quite well. There is an ancient Chinese philosopher by the name of Confucius, and Confucius says, quote unquote, "He who learns but does not think is lost. He who thinks but does not learn is in great danger." So my question to you is, are you all implementing what you are acquiring through the mode of knowledge in your life or not? And what is the ultimate purpose of acquiring knowledge? Is it to gain the material wealth and a defined role in society and so on and so forth? Or is it something else? In my personal opinion, acquiring the wealth of knowledge is meant to reach the top of the pyramid. And the top of the pyramid is enlightenment. Okay, fine. Let us assume if this is a hypothesis जो मैंने अभी आपको बताया. इस hypothesis को prove करने का कुछ proof reading भी तो होगा. So if you'll go through history, you will come across so many different personalities. Like you will read about Gautam Buddha, you will read about Mahavir Jena, you will read about Shankaracharya, you will read about Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati, and so on and so forth. Let us take the example of Gautam Buddha. He was already born as a prince. As a Kumar वो पैदा हुए थे somewhere in Lumbini, Nepal. Fine. So a guy, a person who is already born as a prince, he had all the possible material wealth. Fine. अगर उनके पास हर किस्म की मटेरियल वेल्थ अवेलेबल थी, व्हाई डिड ही वेंट इन क्वेस्ट ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ? एंड उन्होंने वो अल्टीमेट ट्रूथ को अचीव कैसे किया? द आंसर फॉर दिस थिंग इज थ्रू द मोड ऑफ नॉलेज. तो इन माय पर्सनल ओपिनियन, knowledge is not only meant to serve you a defined job or fame or money or power. Its purpose is, fundamental purpose is something far behind that. तो गौतम बुद्ध की जिंदगी को जब आप पढ़ेंगे, तीन की टर्मिनोलॉजीज हर एक बच्चे ने उनकी लाइफ से रिलेटेड पढ़ी होंगी. बी इट महाविनिष्कर्मणा, बी इट धर्मचक्र परिवर्तना एंड महापरिनिर्वाणा. बट तीन वर्ड्स, तीन की टर्मिनोलॉजीज जो ये आपने पढ़ी, क्या ये आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया या नहीं? दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू क्रिटिकली इवेल्युएट योरसेल्फ. बिकॉज टू ऑल द एस्पिरेंट्स हु आर इन माय कांटेक्ट एंड जो मेरे पास आते हैं कुछ पूछने के लिए, आई एड्रेस इट टू एवरीबडी दैट द पर्पस ऑफ नॉलेज is not only confined to job or to fame or to money or to power, so on and so forth. Its purpose, its substantial purpose is something much bigger. So नॉलेज के पर्सपेक्टिव, नॉलेज की हेल्प से ही जब गौतम बुद्ध अपना पैलेस छोड़ के बाहर जाते हैं, तो जब वो काफी सारी चीजों को असेस करते हैं, वो कहते हैं दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज एंड मिजरीज एंड द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज इज डिजायर. ये दो क्वेश्चन है और फिर वो आगे जवाब भी देते हैं दैट डिजायर कैन बी कर्टेल्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ्स. एंड चौथे में वो कहते हैं व्हाट आर द 8 फोल्ड पाथ्स, लाइक non stealing, non lying, speaking the truth, do not harming anybody, so on so forth, right? So I would like to tell it to all of you that knowledge is something which is going to make you a better person every day. अब वो होगा कैसे? जो भी चीज आप पढ़ेंगे, आप उसको एक इनसेपरेबल पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी बनाओ और उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो. एंड आई होप दैट इस चीज से जो भी बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, मेरे टच में हैं, उनका सोचने का पर्सपेक्टिव थोड़ा बदले. उनका लाइफ का जो कॉग्निटिव आपका नैरेटिव है वो चेंज हो जाए, मटेरियल वेल्थ से हटके कुछ बड़ा जिंदगी में. बिकॉज द पाथ विच यू हैव चूजन, द पाथ ऑफ नॉलेज, इसका पर्पस वो नहीं है मटेरियल वेल्थ गेन करना या फेम या सो ऑन सो फोर्थ चीजें. इसका पर्पस इससे बहुत ऊपर है, एनलाइटनमेंट अचीव कर. See, money or fame or power or something else, it is the byproduct. It will always be the byproduct of your efforts. It will come. It will eventually come. But you shouldn't be getting swayed away from these things. Even when you are going to get selected,
उसके बाद भी आपके अंदर एक क्वेस्ट रहनी चाहिए टू अचीव मोर नॉलेज एंड टू मेक यू अ बेटर पर्सन बाय ईच passing day. Fine. So this is enough of the moral lectures for today, and let's switch over to the current affairs series, the MCQ series, and let's see what is the first question for the day. The first question for the day is: Tawa Reservoir has been added in Ramsar site. Is in the state of which among of the following? Fine. So रामसर साइट के बारे में आपने पढ़ा ही होगा. रामसर कन्वेंशन हुई थी 1971 में in the country of Iran. Fine, and it pertains to your wetland ecosystem. Wetland ecosystems. तो रामसर साइट जो है तवा रिजर्वायर, ये तवा रिजर्वायर जो है ये कौन सी स्टेट में फॉल कर रही है? तो ऑप्शंस आर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार एंड तमिलनाडु. द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज योर मध्य प्रदेश. फाइन. Okay, let's see some static part about this topic. The other Ramsar sites which were added in the month of August. So तवा के अलावा दो हमारी रामसर लिस्ट में दो साइट्स ऐड हुई हैं, एंड दे आर योर काजू वैली बर्ड सेंचुरी एंड योर नंजरायन बर्ड सेंचुरी, और ये दोनों तमिलनाडु में. फाइन. एंड लेट्स सी सम स्टैटिक पोर्शन अबाउट द रामसर कन्वेंशन. तो रामसर कन्वेंशन, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, pertains to wetland ecosystem. साइन हुई थी 1971 में. ईरान की सिटी है रामसर. फाइन. एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975. 1971 में ये साइन हुई है कन्वेंशन, और 1975 में ये इन्फोर्स हुई है. अब इसका मिशन क्या है? द मिशन ऑफ दिस कन्वेंशन वाज टू कंजर्व एंड द जुडिशियस एंड वाइज यूटिलाइजेशन ऑफ योर वेटलैंड इकोसिस्टम्स, चाहे वो आपके थ्रू लोकल, नेशनल एंड योर इंटरनेशनल एफर्ट्स. अब ये जो हमारे वेटलैंड इकोसिस्टम है, फाइन, ये आपके नेचुरल भी हो सकते हैं, या आपके आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, या आपके मैनमेड भी हो सकते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ. फाइन. सो वही लिखा है यहाँ पे दैट रामसर कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली वेटलैंड कोई भी एरिया है, मार्श का, फैन का, प्लायास का, बोग्स का, राइट. अब ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, ये परमानेंट भी हो सकते हैं, ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं, और जिनका पानी या तो स्टैटिक हो लाइक योर पोन्ड्स और योर वेल्स और योर टैंक्स, या फिर जिनका फ्लोइंग हो लाइक योर रिवर्स और योर मैंग्रोव्स वाला एरिया. फाइन. ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ये ब्रैकिश वाटर भी हो सकते हैं, एंड इंक्लूडिंग एरिया ऑफ मैरीन वाटर. मैरीन वाटर का वो एरिया जिसकी डेप्थ लो टाइड पे 6 मीटर से ऊपर इंक्रीज ना कर जाए. फॉर इंस्टांस, दिस इज योर एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ योर लो टाइड, एंड दिस इज द एरिया ऑफ योर हाई टाइड. फाइन. तो लो टाइड वाले टाइम्स में इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर से ऊपर ना बढ़े. अब एग्जांपल्स क्या रहेंगी हमारी वेटलैंड इकोसिस्टम की? फॉर इंस्टांस, इट इज योर मरीन कोस्टल एरिया, आपकी एस्टुरीज हो जाएंगी, लेक्स एंड रिवर्स हो जाएंगी, मार्शीज हो जाएंगी, पीटलैंड्स हो जाएंगे, ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स हो जाएंगे, और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हो जाएंगे. फॉर इंस्टांस राइस पैडी कल्टीवेशन, जो भी लोग फार्मिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है उनको पता होगा ये राइस पैडी वाला फील्ड्स वगैरह क्या होती हैं. श्रिम्प पॉन्ड्स and reservoirs. Fine. So these all fall under the category of your wetlands. Okay. तो wetlands हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? wetlands को कंजर्व करने के पीछे जो पर्पस है वो ये है दैट wetlands जो हैं ये हमारा क्लीन वाटर का एक सोर्स रहता है. फाइन. दूसरा, इकोलॉजिकल सिस्टम में ये सोर्स ऑफ फूड रहता है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. फाइन. तीसरा, ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करता है. फाइन. और चौथा, ये एक्ट करता है एज अ बैरियर फ्रॉम योर नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड्स और स्टॉर्म्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके. So these are the things that are related to your wetland ecosystem. The next question for the day is: when National Handlooms Day is celebrated? The options are your 7th of August, 8th of August, 9th of August, and 10th of August. Fine. So the correct answer for this MCQ is your 7th of August. Fine. Okay.
अब इसके बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट देखते हैं दैट ये सेलिब्रेट होता है हमारा 7 अगस्त में, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। विरासत, आपको ये वर्ड याद रखना है अभी, विरासत। विरासत एक क्या है, फोर्टनाइट लॉन्ग एग्जीबिशन है जो डेडिकेट किया गया है 10th नेशनल हैंडलूम डे को। फाइन। और ये हुआ कहां पे है, जनपथ में, एंड जनपथ इज इन योर न्यू दिल्ली। कब से लेके 3rd अगस्त से लेके 16 अगस्त तक। फाइन। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि विरासत जो एक फोर्टनाइट लॉन्ग एग्जीबिशन है ये किसके साथ रिलेट किया गया है, सो इट इज योर नेशनल हैंडलूम डे। फाइन। ओके, लेट्स switch over to the next question. It is which government approved मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। फाइन। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। The options are your Tamil Nadu, Bihar, Karnataka and your Himachal Pradesh. The correct answer for this MCQ is your Himachal Pradesh. Fine. Let's see something about Sukh Shiksha Yojana. As I have already told you, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने लाई है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपके विडोज रहेंगे, डेस्टिट्यूट वुमेन्स रहेंगी, आपकी डाइवर्सिस रहेंगे, डाइवर्स वुमेन, या फिर चिल्ड्रन ऑफ डिसेबल्ड, पेरेंट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। फाइन। वो बच्चे जो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है उनके पेरेंट्स, वो भी इस क्राइटेरिया में फॉल करते हैं। इनकम एलिजिबिलिटी कितनी रहनी चाहिए, 1 लाख से कम सालाना, लेस देन 1 लाख पर ईयर। फाइन। अब इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या रहेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में भी देख लेते हैं। दैट ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा इन सब स्टेक होल्डर्स को 1000 रुपए की पर मंथ। हर महीने आपको 1000 रुपए दिए जाएंगे। किन चीजों के लिए, फॉर इंस्टांस चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, उन बच्चों की एजुकेशन के लिए, उनके हेल्थ एक्सपेंसेस के लिए और उनकी न्यूट्रिशन के लिए। फाइन। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस उन चिल्ड्रन को भी दी जाएगी, उन बच्चों को भी दी जाएगी जो यूजी और पीजी कोर्सेज भी परस्यू कर रहे हैं या फिर आपके वोकेशनल कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं। फाइन। So they are either the benefits under this scheme are either given to the parents or to the children in different categories for different purposes. Fine. Okay. Let's switch to the next question. And the next question is, which state became the first to implement disaster insurance? Fine. The options are your Maharashtra, Manipur, Nagaland and Jammu and Kashmir. So you all need to pause down the video and answer the MCQ in the comment box too. The correct answer for this MCQ is your state of Nagaland. Fine. Disaster insurance. अब disaster insurance में क्या होगा, ये कवर करेगा आपका पूरा नागालैंड के एरिया को, टेरिटोरियल एरिया। फाइन। और इसमें क्या होगा, जो प्रीमियम है वो गवर्नमेंट पे करेगी। फाइन। इंश्योरेंस का प्रीमियम विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट, एंड अगर कोई डिजास्टर होता है इंश्योरर आ जाएगा फॉर द रेस्क्यू। फाइन। तो द प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस इज गोइंग टू बी पेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। और ये इंप्लीमेंट कब तक रहेगा, 2023 से 2027 की ब्रैकेट के बीच में। फाइन। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, renowned DRDO missile scientist Ram Narayan Agarwal, who has passed away recently, belongs to which place? The options are your Hyderabad, your Amravati, your Bhopal and your Chandigarh. Fine. So the answer for this MCQ is your Hyderabad. राम नारायण अग्रवाल जो जी हैं, इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। दैट ही इज ऑल्सो नोन एज अग्निमैन। इनको हम अग्निमैन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये जो थे फर्स्ट प्रोग्राम डायरेक्टर थे अग्नि मिसाइल के। फाइन। अग्नि मिसाइल के फर्स्ट प्रोग्राम डायरेक्टर, एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल, एंड ही इज ऑल्सो अर्न द टाइटल ऑफ अग्निमैन।
इनको पद्मश्री भी दिया गया है और इनको पद्म भूषण भी दिया गया है 1990 में और 2000 रिस्पेक्टिवली में। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राम नारायण अग्रवाल जी, द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। फाइन। तो आपको ये वट एवर द बुलेट पॉइंट्स आई एम प्रोवाइडिंग यू इन माई लेक्चर और थ्रू द पीडीएफ, यू हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दोज बिकॉज इंपॉर्टेंट ऑफ द इंपॉर्टेंट में से मैं वो निकाल के लाता हूं आपके लिए। फाइन। ओके, लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज INS अरिधमन। INS अरिधमन is expected to be commissioned by which year? 2000, 2024, 2025, 2026, 2027. Fine. The right answer for this MCQ is 2025. INS अरिधमन। Now आपको INS अरिधमन के बारे में ये पता होना चाहिए that it is the third nuclear submarine, हमारी इंडिया की थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन। इससे पहले मैंने आपको INS अरिहंत और INS अरिघाट के बारे में पढ़ाया था। तो द फर्स्ट ऑफ दिस क्लास इज योर INS अरिहंत एंड द सेकंड ऑफ इट्स काइंड इज योर INS अरिघाट। फाइन। एंड INS अरिहंत जो है ये 2016 में हमारी कमीशन हुई है एंड INS अरिघाट जो है ये विशाखापट्टनम में एट द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम में कमीशन हुई है। सो INS अरिहंत, INS अरिघाट, फाइन, and INS Aridhaman. Let's switch to the next question. And the next question is, India won how many medals at the Paris Olympics 2024? The answer, the options for this MCQ is 7, 13, 6 or 9. So the correct answer for this MCQ is 6. Fine. पेरिस ओलंपिक्स, पेरिस में जो 2024 वाले ओलंपिक्स हुए थे उसमें इंडिया 6 मेडल्स जीता है जिसमें गोल्ड नहीं है, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज है। फाइन। अब इन 6 में आपका 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। फाइन। इट इज 1 + 5। 2024 पेरिस ओलंपिक्स 6 मेडल्स। फाइन। अब इंडिया का ओवरऑल रैंक क्या रहा है इसमें? इट इज 71st। Fine. And what is the official motto? What was the official motto? It is games wide open. Fine. पेरिस ओलंपिक से हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए आपको कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं या 2024 के पेरिस ओलंपिक्स का मोटो क्या था? सो इट वाज गेम्स वाइड ओपन। मैस्कॉट का नाम क्या था? द फ्राइजीज। फाइन। एंड पेरिस ओलंपिक्स 2024 में जो न्यू स्पोर्ट्स ऐड हुए हैं उसमें आपका स्क्वैश आ जाएगा, उसमें आपका क्रिकेट आ जाएगा, उसमें आपका फुटबॉल, फ्लैग फुटबॉल आ जाएगा एंड उसमें आपका लैक्रोस वगैरह आ जाएगा। फाइन। एंड 2028 के जो समर ओलंपिक्स हैं ये कहां पे हो रहे हैं? दे विल बी हेल्ड इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस। फाइन। ओके। टॉप नेशंस कौन कौन से रहे हैं हमारे 2024 के ओलंपिक्स में? इट इज योर यूएसए, इट इज योर चाइना एंड इट इज योर जापान। फाइन। यूएसए विद 126 मेडल्स, चाइना विद 91 एंड जापान विद 45। ओके। Okay. So the next question for the day is, who were the flag bearers? Who were the flag bearers of India at Paris Olympics 2024? The options are Sakshi Malik and PV Sindhu, Geeta Fogart and Abhinav Bindra, Gagan Narang and Sharat Kamal, and PV Sindhu and Sharat Kamal. So the right answer for this MCQ is your PV Sindhu and Sharat Kamal. Fine. Okay. So she is your PV Sindhu and Sharat Kamal. You can see them on the screen holding the Indian flag. Okay. The next question is 10th bilateral exercise Mitra Shakti. Mitra Shakti was held at मित्र शक्ति जो है ये आपको पता होना चाहिए, ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। फाइन।
ओके, जो 10th बायलेटरल एक्सरसाइज है मित्र शक्ति की, वो कहां पे हुई है? व्हाट इज द प्लेस? द ऑप्शंस आर हियर इंडिया, द ऑप्शंस आर हियर श्रीलंका, मालदीव्स एंड नेपाल. So the correct answer for this MCQ is Sri Lanka. Fine. Okay. अब ये जो मित्र शक्ति है ये होती है बिटवीन योर इंडियन आर्मी एंड योर श्रीलंकन आर्मी. फाइन. इंडियन एंड श्रीलंकन आर्मी. शेड्यूल्ड कब से हुई है ये? फ्रॉम 12th ऑफ अगस्त टू 25th अगस्त. और इसका 9th एडिशन, अभी तो 10th एडिशन जो है ये श्रीलंका में हुआ है, इसका 9th एडिशन कहां पे हुआ है? तो इसका 9th एडिशन जो हुआ है वो हुआ है पुणे में. फाइन. And it has happened it was conducted in 2023. So you can see on the screen the Indian Army and the Sri Lankan armies respectively conducting Mitra Shakti exercise. The next question is, the students from class 6 to 8 are expected to participate in bagless period for how many days according to New Education Policy 2020? The respective options are 13th, 7th, 10th or 2 weeks. So the correct answer for this MCQ is your 10 days. Fine. तो क्लास 6 to 8 के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे बैगलेस पीरियड्स में. फाइन. फॉर 10 days. So again this is a very good step, good initiative taken by the government. So the next question is, IHO, International Hydrographic Organization, and UNESCO's IOC, that is your Intergovernmental Oceanography Commission, recently awarded to which among of the following? The options are Ashoka Seamount, Kalpataru Ridge, and Chandragupta Ridge. The correct answer for this MCQ is here all of the above. Fine. So let's see some more information about this thing. As you can see on the screen, it is your Chandragupta Ridge. It is your Chandragupta Ridge. It is your Ashoka Sea Mountain. It is your Kalpataru Ridge. Fine. And अगर आप इंडिया का एंड इंडियन ओशन का थोड़ा ग्राफ देखेंगे, इफ लेट अस अज्यूम, तो इट लाइज इन योर साउथ वेस्टर्न वाला रीजन. फाइन. ओके. नाउ लेट अस सी, ये जो तीनों के तीन स्ट्रक्चर्स हैं ये डिस्कवर किए गए थे बाय ओशनोग्राफर्स फ्रॉम नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, एनसीपोर, जो कि गोवा में है आपकी. फाइन. अशोकन सी माउंट और आपका कल्पतारू रिज, दिस इज योर अशोकन सी माउंट एंड दिस इज योर कल्पतारू रिज. ये दोनों डिस्कवर हुए हैं 2012 में. और ये जो चंद्रगुप्त रिज है आपकी, चंद्रगुप्त रिज, ये डिस्कवर की गई है आपकी 2020 में. यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन. फाइन. बट जो नेम्स थे ये अवार्ड किए गए हैं 2024 में. तो आपको ये याद रखना है, चंद्रगुप्त रिज, अशोका सी माउंट एंड योर कल्पतारू रिज, एंड दे ऑल लाई इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ योर इंडियन ओशन. फाइन. So the next question is, which village has been designated as Maharashtra's first solar village? The options are your Manyachivadi, the next is your Beed, the third is your Nivasa, and the fourth is your Ekot. So the correct answer for this MCQ is your Manyachivadi. इसको डेजिग्नेट किया गया है महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज. फाइन. Okay. The next question is on your screen and it is National Young Geoscientist Award for 2023 is received by which among of the following? So the respective options are your Professor Dheeraj Mohan Banerjee, Professor G. Padmanabhan, Dr. Ashutosh Pandey, and your D. Dr. Amjad Wasim. Fine. So the correct answer for this MCQ is your Dr. Ashutosh Pandey, Young Geoscientist Award 2023. 2023 का याद रखना आपको, प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष पांडे. अब ये जो डॉक्टर आशुतोष पांडे हैं, he was serving as assistant professor in Pondicherry University
एंड इनको दिया गया है नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट का अवार्ड 2023 का। और ये जो अवार्ड है ये दिया गया है हमारे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। एंड इसका पुराना नाम जो था वो था नेशनल मिनरल्स अवार्ड। 2020 तक इसको हम नेशनल मिनरल्स अवार्ड के नाम से जानते थे, बट नाउ वी नो इट बाय अ डिफरेंट नेम। फाइन, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which will be the first state to adopt the unified pension scheme? तो जो यूपीएस स्कीम है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, कौन सी ऐसी स्टेट है जो पहली बार इसको होल हार्टेडली इंप्लीमेंट करेगी, अडेप्ट करेगी? फाइन, द ऑप्शंस आर योर जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, तमिलनाडु एंड योर महाराष्ट्र। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज योर महाराष्ट्र। फाइन, ओके। 2000 यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है ये 2 मार्च 2025 से आगे इट विल कम इनटू इफेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन marks a pivotal collaboration between the ISRO and which among of the following? The options are your NASA, European Space Agency, your JAXA, that is Japan's Space Agency, and your DRDO. Fine. तो ये जो एक्सियम 4 मिशन है ये एक कोलैबोरेटेड मिशन है आपका इसरो और नासा के द्वारा। फाइन, तो अगर आपको एक्सियम 4 मिशन का पूछा जाए दैट इट इज एन इनिशिएटिव एंड बिटवीन द जॉइंट कोलैबोरेटेड एफर्ट्स ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग, और आपको पेयर्स में भी दिया जाए तो भी आपको ये चीज याद रहनी चाहिए दैट द करेक्ट आंसर फॉर दिस रिस्पेक्टिव एमसीक्यू इज गोइंग टू बी योर नासा एंड इसरो। फाइन, ओके। अब आपको ये चीज याद रखनी है दैट इट इज अ प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन। फाइन, ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट मिशन रहेगा और इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स हमारे गंगायान मिशन के लिए चूज किए गए थे उसमें से 2 सिलेक्ट किए गए हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कोलैबोरेशन ऑफ इसरो एंड नासा एंड प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट, प्राइवेट स्पेस फ्लाइट टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। फाइन, अब यूज किस का यूज कर रहे हैं? ये कर रहे हैं स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का, और रॉकेट कौन सा यूज हो रहा है? फैल्कन 9 रॉकेट का यूज कर रहे हैं एंड स्पेसएक्स ड्रैगन का यूज होगा। फाइन, अब ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन मिशन रहेगा 14 डेज का, 14 डेज का मिशन ये रहेगा। एंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसरो ने 2 एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट किया है। जो गंगायान मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स रहने वाले हैं उनमें से 2 एस्ट्रोनॉट्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। ये ट्रैवल करेंगे आपके आईएसएस में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 14 डेज। और इनके कैप्टन जो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला एंड योर प्रशांत बालकृष्ण नैयर। राइट, so you can zoom in the images and you can see the things which have been etched on the screen, and these are your 2 captains effectively. Okay, the next question is on your screen, and it is which app will enable the courts to hear witnesses via video conferencing? फाइन, तो पहले टाइम में जब तक आपका जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन एंड वो नहीं था, तो हमारी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जब विटनेसेस को बुलाया जाता था उनको इन पर्सन आके वहां पे अपनी जो गवाही है वो लिखानी पड़ती थी। बट विद द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप विटनेस से पूछताछ कर सकते हैं। अब कौन सी ऐप है जो इस नरेटिव को इनेबल करवाएगी? द गिवन ऑप्शंस आर योर ई समन ऐप, योर न्याय सेतु डैशबोर्ड, ई सस्य एंड न्याय श्रुति।
द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू इज हियर न्याय श्रुति. फाइन. न्याय श्रुति. इसके अलावा न्याय श्रुति के अलावा आपको ये चीज याद रखनी है दैट अमित शाह जी ने लॉन्च की है 4 न्यू एप्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज. भाई हमारी जो जुडिशियल वर्किंग है उसकी स्मूथ प्रोसीडिंग्स के लिए ये जो 4 न्यू एप्स हैं ये हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं. अब उसमें आपका ई समन ऐप आता है. फाइन. तो अगर कोर्ट ने पहले समन सर्व करना होता था, फाइन, तो उसके लिए इन पर्सन किसी को भेजा जाता था और वो इंसान फिर आगे वाले के घर पे जाके उसको वहां पे समन सर्व करता था और वहां पे सिग्नेचर दैट समन हैज बीन सर्व. नाउ व्हाट इज द ट्विस्ट? ट्विस्ट इज ई समन ऐप लॉन्च की गई है. अब ये जो ई समन ऐप है ये क्या करेगी? ये अलो कर देगी कोर्ट को समन्स को भेजना इलेक्ट्रॉनिकली टू द पुलिस एंड इंटेंडेड रेसिपिएंट. अब फॉर इंस्टांस पहले वाले टाइम में जब इंसान फिजिकली जाके वहां पे समन सर्व करता था तो कई बार ऐसे इंस्टांसेस भी हुए हैं जब लोग अपने घरों को ताला चढ़ा देते थे बाहर से और उनको लगता था जो समन सर्व करने गया होता था उसको लगता था कि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं है और वो वापस चला जाता था, समन सर्व नहीं होता था. फाइन. अब थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड आपने थ्रू ईमेल और ऑन टू द व्हाट्सएप और एनी अदर ऐप आप जो ऑनरेबल कोर्ट है वो समन सर्व कर सकते हैं टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट. अब रेसिपिएंट को चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी समन उस तक जाएगा एंड दिस इज गोइंग टू मेक द वर्किंग इजी. द सेकंड ऐप इज योर न्याय सेतु ऐप. न्याय सेतु डैशबोर्ड. न्याय सेतु डैशबोर्ड क्या करेगा? ये इंटरलिंक कर देगा स्टेक होल्डर्स को. कौन से स्टेक होल्डर्स को? योर पुलिस, योर मेडिकल, योर फोरेंसिक्स एंड योर इन्वेस्टिगेटर्स जो असेस कर सकेंगे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को एक ही डैशबोर्ड पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे ऑन रियल टाइम बेसिस. फाइन. एंड द थर्ड ऐप इज योर ई साक्ष्य ऐप. ई साक्ष्य ऐप से क्या होगा? यहां पे जितनी भी वीडियोग्राफीज हैं, फोटोग्राफीज हैं और टेस्टिमनीज हैं ये यहां पे इस ई साक्ष्य ऐप में सेव कर दी जाएंगी. फाइन. अब ये इससे क्या होगा? इट विल बी अवेलेबल टू ऑल द कोर्ट्स ऑन अ रियल टाइम बेसिस. फाइन. अब अगर कोर्ट की कोई भी वो है आपका जजमेंट है या कोई भी एविडेंस है या कोई भी वीडियोग्राफी है, कोई भी फोटोग्राफी है और उसको रियल टाइम बेसिस पे एसेस किया जा सकेगा. फाइन. आई एम ऑल्सो लॉयर बाय प्रोफेशन एंड अपनी प्रैक्टिस में हम जब से ये चीजें आई हैं, हमारी ये जो एप्स लॉन्च हुई हैं, इनसे हमारे कोर्ट की वर्किंग, हमारी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उनकी वर्किंग बहुत ईजी हो. राइट. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Avianna Aviation Academy, the first training academy of Rajasthan, has been launched at which airport? So the options for these MCQ is your Kishangarh Airport, your Udaipur Airport, Jaisalmer Airport, and your Chittorgarh Airport. The correct answer for this MCQ is your Kishangarh Airport. Fine. Okay. The next question is your India's first exclusive digital court for handling cases under the Negotiable Instrument Act. Negotiable Instrument Act has been launched by which state? So the options for these MCQs are your Jammu and Kashmir, Maharashtra, your Kerala, and your Tamil Nadu. Fine. The correct answer for this MCQ is your Kerala. Fine. Switching to the next MCQ, it is PM Jeevan Yojana. PM Jeevan Yojana has been recently extended. PM Jeevan Yojana को recently extend किया गया है कब तक? 2026 से 27, 2026 to 2027, 2027 to 28, 28 to 29 और ये 29 to 30. The correct answer for this MCQ is 2028 to 2029.
Fine. Okay. Now, what is the meaning of जीवन? तो जीवन stands for जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल, फसल, अवदेश, निवारण. Fine. So somehow you have to memorize the definitions of these acronyms, and it has been extended till 2028, 2029. And what is the aim? What is the aim for? What is its aim? The aim is it is going to provide remunerative income to farmers. Fine. For their agricultural residue. Now, जो फार्मर्स हैं वो जब भी अपना कोई क्रॉप शो करते हैं एंड जो क्रॉप का एडेबल पार्ट है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं, कुछ रेजिड्यू रह जाता है पीछे, स्टबल जिसे हम कहते हैं. भाई, तो स्टबल का भी जुडिशियस यूटिलाइज किया जाएगा एंड रिम्यूनरेटिव इनकम दी जाएगी फार्मर्स को उनके क्रॉप रेजिड्यू के लिए. अब इससे होगा क्या? इससे होगा कि जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो कम हो जाएगी. फाइन. इससे क्या होगा? लोकल एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगी. फाइन. एंड उससे क्या होगा? जो इंडिया का हमारा होलिस्टिक विजन है, सेल्फ रिलायंस का एंड इंक्लूसिविटी फॉर ऑल, वो अचीव होगा. फाइन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर empowering millions of women is released by which among the following? The options are here: Kalpana Sarkar, your Soumya Swaminathan, your Darius Fox, and both A and B. So the correct answer for this MCQ is Soumya Swaminathan. Fine. Okay. So the book has been released by Soumya Swaminathan, and ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? कल्पना सरकार की. कल्पना सरकार की. Fine. And she is also the author of this book. You can see on the screen Soumya Swaminathan and Kalpana Sarkar. Fine. Okay, other than that, I would like to tell that the online and offline batches for JKPSI examination are going on in your Canal Branch Road. And to all the aspirants who are interested in taking the guidance and mentorship, they can visit our Canal Branch Road for further inquiries. And apart from that, the fresh batches are going to start for upcoming Naib Tehsildar examination and your Patwari examination. And other than that, the material, the resources, it is going to get provided to all the aspirants who are going to come and join the batches. And apart from all of that, test series by the name of Prahar has already been launched, and I hope you all are already appearing in for the tests and all that. Go give it a try and self-evaluate yourself. Where is your preparation standing? Fine. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.